सर मैं जैसे आपको जानता हूँ, you're a volunteer for this dog NGOs and you're involved in a lot of activities with the animal and all those things. How you started taking care of this animal and what was the turning point? The turning point. That's a long answer to a short question. So I have been involved with animals for about 16 years. I used to be a volunteer. पहले मैं अमेरिका में था. I used to volunteer there for animals, and I started learning slowly about cruelty that animals face. Also, through my volunteering, I figured out कि जो भी उनको cruelty होती है उसके खिलाफ जो protest करते हैं, those people are vegans. And they take care of all animals, not just dogs. I started for dogs, but then I realized that all animals is just as important. So through them, I learned the importance of loving all animals, not just dogs. So that's where it started. And then I had a dog. He passed away in 2009. When he passed, then I started volunteering more. You know, when you feel grief, there's several things that you do to resolve the pain. My resolution was to work more with animals, and that really helped me. And that's what helped me start an NGO in my dog's name. Also, I started doing more cruelty cases. I started. What is the name of your NGO? Pedus people. Pedus people. Pedus people. Okay. So I started doing cruelty cases. तो वहाँ पे क्या होता है कि cruelty cases आप करते हो as a volunteer. क्योंकि अगर आप एक cruelty inspector बनते हो, then they give you a gun and all that, so you're a part of law enforcement. Okay. तो वो आप part time नहीं कर सकते. So then I realized at some point that I was having more fun. I wouldn't say fun, but it was closer to my heart to do that than my engineering job. Okay. So at some point I quit my engineering job and started doing that full time. I became a law enforcement officer there. I did that for about 2 years. Overall worked with animals for 6 years, and then I decided to come to India. Decided to come to India and when you started your NGO? So we started in the US in 2014. In US, okay. Yeah, so our NGO is registered in the US, and the same NGO is registered in India. Okay. Of course, the two are not linked to each other because they're different bodies, but the name is the same. So we registered in India in 2016. I came here in 2015. Okay, that's great, sir. Sir, vegans. आजकल हम बहुत सुन रहे हैं vegans and थोड़ा सा इसको elaborate करके बताइए क्या exactly vegans होते कौन है जो milk product को भी deny कर रहे हैं कि हमें नहीं खाना है. Milk product आज की मतलब हमने आई थिंक कितनी स्टडीज पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन विटामिन सब कुछ हमें शायद दूध से ही मिल रहा है. तो vegans कहते हैं हमें यही नहीं पीना. Why, how it happens, what exactly they think, how vegans started. ये थोड़ा इसका हिस्ट्री बताओ. So vegans जो कल्चर है veganism का या जो veganism है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है. It's about 40-50 years old. Okay. It started becoming a trend about 20 years ago. तो vegans वो होते हैं जो animal से आए कोई भी product को use नहीं करते हैं, ना वो पहनते हैं ना वो खाते हैं. Because जब भी हम कोई भी product animal से लेते हैं या किसी भी चीज़ के लिए animal product को use करते हैं तो हम उस animal को exploit करते हैं. वो guaranteed है. उसके अलावा किसी भी जानवर से वो product ले नहीं सकते, भले वो दूध हो, शहद हो, leather हो, silk हो, तो आप जानवर को exploit करके ही वो product ले सकते हैं. तो जो vegans होते हैं उनका अलग अलग रीजन से लोग वीगन होते हैं. कई वीगन्स बनते हैं सिर्फ अपने हेल्थ के कारण, बिकॉज वीगन खाना खाते हैं वो हेल्थी रहते हैं. वो हेल्थी डाइट होती है, बहुत हेल्थी डाइट होती है. नॉर्मल नॉनवेज और उससे बेटर होता है. एब्सोल्युटली उससे बेटर है. कई लोग वीगन एनवायरनमेंट के कारण बनते हैं, बिकॉज जो एनिमल एग्रीकल्चर है उससे पोल्यूशन बहुत होती है. ओके. कोई लोग एथिकल वीगन्स बनते हैं जो मैं हूँ. मुझे लगता है कि मेरा जीवन किसी भी और जानवर से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. तो जैसे मैंने आपको बताया, it's not just the dogs. All animals are the same. Every animal has a life, and that life is valuable. मेरे हिसाब से my life is not more important than a toad's life, or a frog's life, or a horse's life, or an elephant's life, or a dog's life. सर इसको तो हम थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाए तो हमारा एक धर्म है चाइनीज का धर्म है. They used to wear that mask on their face. और उनका कंसेप्ट ये है कि कोई इंसेक्ट हमारे अंदर ना चले जाए, और वो है कि वो इंसेक्ट अगर हमारे अंदर गया तो वो हर्ट हो जाएगा. ये आई मीन हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी चल रही है ना. तो जैसे कि जब हम सांस भी लेते हैं तब भी वो हमारे अंदर चले जाते हैं और किलिंग हो जाती है.
एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड वेयरिंग मास्क एंड ऑल। तो ये तो लेवल आप एक्सट्रीम लेवल अगर बोले तो एक्सट्रीम नहीं है, बिकॉज जो जो उनका कॉन्सेप्ट है उनमें वो फिर भी दूध यूज़ करते हैं, वो फिर भी वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो जानवर से आता है। तो क्योंकि मैं एथिकल वीगन हूँ, मैं एथिकल रीजन से किसी भी जानवर को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना चाहता हूँ। मेरी वजह से कोई जानवर मरना नहीं चाहिए। सिर्फ वो नहीं मुर्गा है जो मेरे कारण कट रहा है, सिर्फ वही मरता नहीं है। जो गाय फेस करती है, जो मधुमक्खियों के साथ होता है, वो सब एक्सप्लॉइट किए जाते हैं जो शीप के साथ होता है ऊन के लिए। से यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरे को क्लैरिटी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि ह्यूमन जो है बॉडी है वो दोनों के लिए है, वो वेज और नॉन वेज दोनों के लिए बनी हुई है, जो बायोलॉजी ने हमें बताया। एक हमारे पास यहाँ पे बहुत एक बायोलॉजी एक्सपर्ट भी आए थे, तो मैंने उनसे ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा क्या मेरी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जिनको नॉन वेज रिक्वायर्ड है, उनके बिना उसका नहीं चलेगा, या उसका उनका आंसर थोड़ा ठीक था कि हाँ रिक्वायर्ड होगा, लेकिन इतना नहीं है कि आप डेली खाते रहे, या ऐसा कि कुछ टाइप का रिक्वायर्ड है। तो डोंट यू थिंक कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनको एक्चुअली में नॉन वेज रिक्वायर्ड है, दैट इज देयर बेसिक नेचर? सो सेल्स की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती है सर। सो होता ये है कि सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, सेल सिर्फ एनर्जी से चलते हैं और आपको एनर्जी खाने से मिलती है। वो किस तरीके का भी खाना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि क्या हमारी बॉडी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, हम नेचुरली हैं, तो हम डेफिनेटली वेजिटेरियन हैं। उसके कई एग्जांपल्स हैं। एक हमारा जो केनाइन टूथ है वो बिल्कुल एक छोटा सा केनाइन है, वो शेर जैसा लंबा केनाइन नहीं होता है। हमारे दांत फ्लैट होते हैं गाय की तरह या घोड़े की तरह। अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं सर सबके, ह्यूमंस के भी। नहीं, बेसिकली हमारे दांत सामने से फ्लैट होते हैं, तो जो मोलर्स होते हैं वो वो चीज़ चबाने के लिए होते हैं, मांस खींचने के लिए होते हैं। आप शेर का मुंह का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनका उनका होता है मांस फाड़ने के लिए। एक उनका दांत बहुत होता है और सामने वाले दांत उनके बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं। उनके सिर्फ जो जो केनाइन टीथ होता है दैट्स यूज्ड टू पुल फ्लैश, तो वो हमारा नहीं है। दैट्स वन। द सेकंड इज कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि जितनी देर खाना आपके इंटेस्टाइन में रहता है उतना वो डिटेरियोरेट करता है। तो जो मीट है उसका डिटेरियोरेशन रेट वेजिटेबल्स के डिटेरियोरेशन रेट से बहुत ज़्यादा है। तो उनका एक बहुत छोटा साइकिल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारा एक बहुत लंबा साइकिल है, बिकॉज नेचर हैज़ इंटेंडेड अस टू हैव प्लांट्स। और जो हमारा स्ट्रक्चर है हाथों का भी, सो मैन इज अ गैदरर नॉट अ हंटर। हम हंटर सिर्फ तब बने जब हमारे अपोजिबल थंग्स के कारण हम टूल्स बना सके, राइट? जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक मुर्गे को भी पकड़ के उसको मार के खा सके। अब तो पकड़ नहीं पाएगा वो। अगर पकड़ भी लेगा तो उसको मुर्गा खाने के लिए उसको पहले कुक करना पड़ेगा। रॉ कोई नहीं खा पाता है। So nature intended us to have raw things, right? Nature didn't know कि कभी fire invent होगी, फिर मसाले invent होंगे, फिर हम उसको cook कर पाएंगे और मुर्गे को खा पाएंगे। So by nature we are gatherers. We gather only fruit. We've learned agriculture through evolution. Okay. Yes. So by nature, all of us, the way nature intended us, we're vegetarians. It's just the way our body is. But that was just to answer your question. But there are no cells. To a cell needs energy to multiply or to give out more energy. It can be given through chocolate. Absolutely. Just protein chocolates and how it be. Absolutely. So energy, it just depends upon how your body breaks down that energy. So अगर आप high cholesterol food खाते हैं तो आपके veins में cholesterol जाके बैठता है। अगर आप ज़्यादा फ्रक्टोज या शुगर खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर आपके लिवर में जाता है। सर मैंने ना एक्चुअली एक हमारे जो मैम आए थे, मैंने उनसे एक ये क्वेश्चन भी पूछा था। मैंने कहा कि आप पैनिक नहीं क्रिएट करते हैं बायोलॉजी की, आपकी डिटेल नॉलेज है आपके बॉडी ऑर्गन्स की, की डाइट की और इन चीज़ों की, क्या आपको थोड़े टाइम में क्या पैनिक नहीं क्रिएट करती कि ये खराब है मेरे लिए, ये अच्छा है, मेरे को हैंड्स वॉश करने हैं काइंड्स ऑफ ऐसा करके? सिमिलर कंसेप्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जब हमारा शुरू हुआ ये सारा कुछ, मैं सोचता हूँ कि कैसे नॉनवेज खाना शुरू किया होगा। तो पुराने टाइम पे वॉर्स होती थी तो एनिमल्स को साथ लेकर चल सकते थे और अपना एग्रीकल्चर का कंसेप्ट कम होगा उस टाइम, तो एनिमल्स को साथ लेकर चलते थे और अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी ऐसे चलती थी।
एक टाइम पर आया आपने कहा एक एवोल्यूशन आई जिसमें हमने सारा कुछ अपने एग्रीकल्चर के ऊपर बेस कर दिया और अपनी बॉडी एग्रीकल्चर बेस्ड डालने की कोशिश की। अ, इससे क्या फर्क पड़ेगा सर आने वाले, आपने अपने नेचर में क्या चेंजेस देखे? आपको आप पहले आप वेज किया, आपने आपने नॉन वेज खाया फिर? मैं सारी ज़िंदगी नॉन वेज खाता था। लाइक 9 years ago I switched completely to being vegan. नेचर में क्योंकि मैं एक एथिकल वीगन हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं किसी से बेहतर नहीं हूँ, ना मैं किसी जानवर से बेहतर हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं किसी इंसान से भी बेहतर नहीं हूँ। सो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एंटी स्पीशीज़िज्म, एक चीज़ होती है स्पीशीज़िज्म, जिसमें हमें लगता है कि हमारी जो स्पीशीज़ है, ह्यूमन स्पीशीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई स्पीशीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत ही कॉमन वो है, तभी हम किसी भी और स्पीशीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, भले वो शेर क्या हो। सर ऐसा है नहीं? तो मेरे हिसाब से नहीं है। क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से सारे स्पीशीज़ बराबर हैं। मेरी ज़िंदगी, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि मेरी ज़िंदगी किसी घोड़े की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वही उसकी, वो सेंशिएंट बीइंग है, वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, उसके बच्चे हैं, ठीक है? वैसे ही मैं चाहता हूँ। उसको दर्द होता है अगर उसके ऊपर कोई क्रूल्टी करे, मुझे दर्द होता है। तो हमारे फीलिंग्स एसेंशियली सेम हैं। उसे हम सेंशिएंट बीइंग्स कहते हैं। ओके। तो जो भी सेंशिएंट बीइंग्स हैं, वो सब एक ही लेवल पे हैं। जो इंसेक्ट्स हैं वो सेंशिएंट नहीं हैं, क्योंकि उनके सीएनएस नहीं होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है ओके। सो अलग-अलग जो तो वो स्पीशीज कैसे वर्क करता है? कैसे बोलते अच्छा, हैं, वो सेंसेशन नहीं होता उनका। उनकी ब्रेन नहीं होती, so they don't have a central nervous system through which they have a brain, but they don't have a central nervous system which feels pain. ओके, तो उन्होंने बस खाना है और अगर वो मरते हैं तो आपका मतलब उनको पेन नहीं होता है इंसेक्ट्स? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेन नहीं होता है, पेन डेफिनेटली होता है, but they don't feel pain through their central nervous system. ओके। So if I have a hurt this thing on my arm, so for instance earthworm है, आप earthworm को 10 टुकड़ों में काटो, वो 10 earthworm बन जाता है, जी। right? So that's the way insects are supposed to be. Not all of them mutate and mitose, but that's their body structure. Our body structure is that we're sentient beings. All animals, almost all animals and fish are sentient. Sentient से मुझे ये समझ है कि उनको दर्द होता है, उनको अपनी फैमिली के साथ रहना होता है। They all animals, जैसे dogs, cats, कोई भी देख लो आप, they all live with their family. They grieve for each other. They feel anger and pain and anxiety and all that. Do you understand their languages? I don't understand their language at all. I understand their pain. That's the more important thing. तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी स्पीशीज उनकी स्पीशीज से ज़्यादा ज़रूरी है। That's the biggest difference. So मेरे हिसाब से सारी स्पीशीज एक जैसी हैं। बाय डिफॉल्ट आप पूछ रहे थे कि मेरे में चेंज क्या आया, तो अगर मेरी स्पीशीज किसी जानवर की स्पीशीज से सेम है, तो मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि मेरी जो स्पीशीज है या जो मेरी रिलीजन है, वो किसी और रिलीजन से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेरा सेक्स है वो किसी और सेक्स से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेरा एज है वो किसी और एज से इम्पोर्टेंट नहीं है। सो एवरीबडी इज इक्वल। तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये गोरा है, ये काला है, ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है। मेरे लिए सब बराबर हैं। ये लड़की है, ये लड़का है, ये इसकी एज ज़्यादा है, कम है, मोटा है, पतला है। सो बाय डिफॉल्ट एवरीबडी इज द सेम फॉर मी। सो दैट इज माई पर्सनल, ये सिर्फ मैं अपने पर्सनल बोल सकता हूँ कि in my personal life, this is the biggest change. I treat everybody as equals. सर क्या फर्क देखा आपने फॉरेन कंट्रीज में, how people treat, how people deals with vegan and अगर इंडिया में आप बोले कि we are vegan, तो how people react? So पहले क्या होता था, there used to make fun of it. जब भी हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, हमारा डिफॉल्ट होता है उसका मजाक उड़ाना, because that's how we feel better about ourselves, right? So as vegans, people get skeptical कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। I understand कि आज से 9 साल पहले मुझे पता नहीं था veganism क्या है। तो जो सामने वाला है वो आज उसी जगह है जहाँ पे मैं 9 साल पहले खड़ा था। So I am in no way better than him. अगर वो जानना चाहता है तो मैं willingly उसको बताऊंगा। अगर वो नहीं जानना चाहता, अगर वो इग्नोर करना चाहता है, not a problem. मैं भी 9 साल पहले इग्नोर ही करता था। So in my mind, अगर वो अमेरिका में हो या इंडिया में हो, so पहले वो स्केप्टिकल होते हैं कि आप क्या हैं, एक नई चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है। अगर वो जानना चाहें और एक बार वो समझें कि वो ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, सेंशिएंट बीइंग्स के लिए, सबके लिए बेहतर है, then if they want to adopt it, well and good. लेकिन क्या हो रहा है in the world over the years, in the last 10-15 years that I've observed it, this started off as a trend and now it's become a movement, and now it's come to a point where nobody can ignore it.
right? It's in your face, it's vegan, the products are everywhere, you keep on hearing the word every day. We have stores are open. Your vegan stores have opened, there are vegan restaurants that are opening, there are people who are turning vegan, and there are people who are opening their eyes to veganism. And there's a time till which you can ignore it, and there's a time when you can't ignore it. So it's to a point right now in the world where they've started embracing it. In India, it's to a point where you can't ignore it anymore. Sir, action. सर मिल्क प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स आपने आई शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। आप ही के एक वीकेंड आपने पार्टी गेट टुगेदर किया था, तो मैं वहाँ पर आया था। समबडी टोल्ड मी कि यहाँ पे गेट टुगेदर है, आप फ्री होते हो, आपको जाना चाहिए, सर वीकेंड काइंड ऑफ थिंग। तो आई वाज नॉट अवेयर कि वीकेंड क्या होता है। तो एवरीबॉडी सिटिंग अराउंड, सब पूछ रहे थे कि हाउ यू बिकम वीगन, टेल योर स्टोरी। एंड आई जस्ट मैंने अपना मोबाइल निकाला कि वीगन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीगन, राइट? अच्छा, अब उसी पार्टी में एक कुछ सोशल वर्कर थे जो आए थे। उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, उनका 30-40% शायद उनका बछड़ा दूध पीता है। अगर बाकी का दूध निकाला ना जाए तो उसके सेहत के लिए खराब होता है, तो वो वाला दूध निकालना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इंजेक्शंस लगा के अगर आप उसका मिल्क निकालने की कोशिश कर रहे हो देन इट वुड हार्म, अदरवाइज अगर आप उसको नेचुरली निकाल रहे हो और ले रहे हो तो वो हार्मफुल नहीं होता। और उनका एक और कंसेप्ट है कि गाय की कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं ह्यूमन के, और वो काफ़ी हमारे बॉडीज़ के डेफिशिएंसीज को पूरी करती है मिल्क का। हम शुरू से एडवर्टाइजमेंट आती थी, दूध 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 इज़ अ वंडरफुल थिंग। एक छोटे होते मुझे याद है, एक रोज़ खाओ अंडे, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। एकदम से सडनली आज 20 साल बाद हम कह रहे कि दूध भी अच्छा नहीं, अंडे खाने भी अच्छे नहीं। और एक्चुअली ये कुछ स्टडीज भी प्रूव कर रही हैं, और लेटर हमारे पास इस चीज़ की टीवी पे ऐड आती है। तो इस चीज़ को आप कैसे इसको डिफाइन करें? देखिए, सबसे पहले तो जो ऐड की बात करते हैं, तो जो एड्स होती थी वो अगर आप यूट्यूब पे आप डाल के देखिए कि संडे हो या मंडे रोज का वनडे, वो ऐड के, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग प्रोड्यूसर्स हैं वो ऐड बनाते थे। जो दूध वाली ऐड थी वो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट ऐड बनाता था। तो ये वो लोग ऐड बनाते हैं जो चाहते हैं कि आप पहले अंडा खाना शुरू करें, पहले दूध पीना शुरू करें, दवाई खाना शुरू करें। I mean, so their concept is हमारे अंडे ज़्यादा बिके. So it's a commercial thing. It's got nothing to do with what's good for you and what's good for your health. Right? It's like Pizza Hut. If they could advertise, they'll say pizza खाओ जी, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है. Right? They don't care कि उससे फर्क क्या पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, it doesn't matter. Right? लेकिन पिज़्ज़ा बेचने के लिए आपको, या पिज़्ज़ा की चीज़ बेचने के लिए पहले आपको दूध को अच्छा बताना पड़ता है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट, दैट्स वेयर दैट हैज कम फ्रॉम, राइट? दूसरा कि हमारे को कॉन्स्टेंटली ओवर द इयर्स एडवर्टाइजिंग से हमारे को ये बॉम्बार्ड किया गया है कि दूध आपके लिए अच्छा है, राइट? सो वो एक, जब आपके पेरेंट्स ने सुना, जब आप पैदा हुए तो उन्होंने आपको वही बिना सोचे वही चीज़ आपको बता दी। अब आप वही सुनते सुनते बड़े हुए हैं, वही आप बिना सोचे अपने बच्चों को बता देंगे। So that becomes a tradition. But just because it's been passed on from generation doesn't mean it's a good thing. Case in point, the age. वो भी हमारे को जनरेशन से पास ऑन ही हो रहा है। It's not a good thing. तो उसको कैसे कहेंगे सर कि जो कह रहे हैं कि हमारा 80-60-70% जो काऊ का मिल्क है वो निकालना भी जरूरी है। So let's talk about that. तो आपने कहा कि कभी, so let's talk about humans. एक माँ कितना दूध प्रोड्यूस करती है? सिर्फ उतना जितना उसका बच्चा पी सकता है, right? That's nature. She'll only produce the amount of milk a baby can have. Okay. Similarly, a cow is only going to produce that much milk that a calf can have. Okay. Right? And nature says, अगर उसने कम दूध पिया है, the cow is going to be fine. You don't need to milk her. ये सिर्फ excuses हैं जो हम अपने आप को देते हैं कि हमने तो दूध उसका खराब हो जाएगा, उसके थन खराब हो जाएंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। The fact of the matter is mastitis happens because जब एक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो उसके दांत नहीं आए होते, so they suckle. वैसे ही गाय का बछड़ा जब अपनी माँ का दूध पीता है तो वो suckle करता है। लेकिन जब हम दूध निकालते हैं, जो दूध दोते हैं हम,
तो हम सकल वाली एक्शन से नहीं करते, हम क्या करते हैं, वी पुल लाइक दैट, राइट। तो जो कांस्टेंट पुलिंग होता है उनके अडर्स पे, उनसे उसके अडर्स में इन्फेक्शन आता है, जिसके कारण मेस्टाइटिस हो जाता है। तो एक गाय जो आमतौर पे 15 साल के लिए प्रोडक्टिव होती है, वो 7-8 साल में आप देखेंगे कि मेस्टाइटिस होना शुरू हो जाता है। पहले एक तन में शुरू होता है, फिर दूसरे में। अब हमने क्या किया है, उससे भी एक स्टेप आगे गए, हमने वो मशीन्स लगा दी हैं जिसके अंदर वैक्यूम होता है, तो वो कॉन्स्टेंटली सकल करता रहता है। जब वो दूध देना बंद भी कर देती है, वो मशीन वहां पे लगी रहती है, और उससे जो उसका बैक्टीरिया जो उसके अंदर जाता है, उससे उसको मेस्टाइटिस होता है। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट एट ऑल इन नेचर कि हमारे को वो दूध निकालना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर बछड़ा पैदा होता है जो मेल है, जो किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, मेल बछड़ा तो किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ फीमेल चाहिए होती है, तो एथिकल डेयरी तो कोई होती नहीं है, बिकॉज जो मेल है उसको हम या तो 2 दिन में 4 दिन में मार देते हैं, या बुचड़ खाने भेज देते हैं, उसको लेदर बन जाता है, वो इटली जाके उसका गुची का बैग बनता है, ठीक है। तो जब गाय का बछड़ा उससे छीन लिया, तो वो दूध कैसे देगी, आप बताओ। दूध उसका उतरता नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए वो दूध प्रोड्यूस करेगी। तो हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन देते हैं, जो ड्रग आप बोल रहे हैं, उसकी गर्दन में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जो एक हार्मोन है जिससे मदरली फीलिंग्स आती हैं गाय को, तो दूध उसका निकलता है, राइट, which is an extremely painful thing. Oxytocin is a banned substance everywhere in the world, including India. Including India, it's 100% banned. लेकिन आप किसी भी डेयरी में जाके देखिए, अभी हमने डेयरी सर्वे किया है, there's 126 डेयरीज, हर डेयरी के अंदर, every single dairy we've got oxytocin just sitting there on the shelf. और जो भी, और फार्मर्स ही देते हैं ना, उनको देने का समझ है। सर फूड इंस्पेक्टर्स का क्या रोल आता है यहाँ पर? सो एफएसएसआई के जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके दूध की डेंसिटी चेक करते हैं, और वो भी कहाँ चेक करते हैं, जहाँ पे कोऑपरेटिव दूध इकट्ठा करते हैं। सो इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वेरकाज आल्सो कोऑपरेटिव। वो क्या करते हैं, एक मिल्क कलेक्शन सेंटर होता है, तो हर फार्मर दूध निकाल के वहाँ पे जाके दूध देता है, अपना दूध वहाँ पे उनके कलेक्शन सेंटर में दे के आता है। तो जब वो डेंसिटी वो चेक करते हैं दूध को, उसकी सिर्फ डेंसिटी और फैट कंटेंट चेक करते हैं, ये देखते हैं कि उसके अंदर कोई वो नहीं है। कभी वो ऑक्सीटोसिन के लिए नहीं चेक करते, एंटीबायोटिक्स के लिए नहीं चेक करते। और ये सब करने के बाद ही आप ये सोचो कि 100-200 डेयरीज के ऊपर एक इंस्पेक्टर एक बार एक महीने में आता है। सो दैट्स क्लियरली ही कांट चेक एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज गोइंग अनचेक्ड। और वही ऑक्सीटोसिन है जो गाय के दूध के थ्रू हमारी बॉडीज के अंदर जाता है। सर एनिमल लैंग्वेजेस समझते हैं कुछ, उनका कि आंखें से क्या बात करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, कुछ ऐसा? मैं नहीं समझता हूँ जी, मैं एनिमल साइंस के ऊपर किसी से बात हुई है आपकी? हाँ, जिन्होंने एनिमल साइंस स्टडी की हो और उससे बात हुई? मुझे सिर्फ मुझे एनिमल्स के बारे में सिर्फ जो बेसिक्स हैं वो पता है, कि आप उनको, हर जानवर एक नई सिचुएशन में किसी भी नई चीज़ से जो जिसको उसने पहले देखा नहीं है, डर जाता है। आप जंगल में जाएंगे, कोई भी जानवर हो, वो आपको देखते से ही पहले भागेगा, क्योंकि उसने आपको ज़िंदगी में पहली बार देखा। वही डॉग होता है, जो नया पपी किसी के घर जाता है, आप किसी के घर जाते हो तो सबसे पहले वो नए घर में जाके छुपता है। जानवर की आदत होती है, जो भी चीज़ नहीं है, आप अपने घर में एक टीवी ले आओ या एक नई कुर्सी ले आओ, तो जानवर को नहीं पता कि वो जिंदा है या मरा हुआ है। वो आके उसको स्मेल करेगा, पहले उसके पीछे वो डरेगा, होगी क्या नई चीज़ आ गई, जब तक उससे फेमिलियर नहीं होता। तो मुझे सिर्फ जानवरों की इतनी समझ है कि अगर आप थ्रेट ना बनो उनके लिए, अगर मैं जंगल में जाता हूँ, डेयर आता है, तो मैं वहाँ पे जाके बैठ जाऊँ, वो आके मुझे स्मेल करे, उसको ये लगे कि मैं उसको मारने नहीं आया हूँ, वो मेरे साथ दोस्ती करेगा। आपको मतलब कि वो आपकी इंटेंशंस समझता है? वो ये समझता है कि क्या आप उसको हार्म करने वाले हो, तो आपको पेशेंट होकर उनको बताना पड़ता है कि मैं आपके लिए थ्रेट नहीं। ऑफ कोर्स वो मैं शेर को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरे लिए थ्रेट है, लेकिन मुझे सबसे But we have this tiger trainers also जो so वो यूजुअली ट्रेन करते हैं जब वो छोटे बच्चे होते हैं, जब से। Okay. लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, वो अगर उनके लिए थ्रेट ना हो तो वो हमेशा दोस्त रहते हैं, राइट। तो मुझे सिर्फ जानवरों की इतनी समझ है कि कोई भी जानवर आपको मिले, उसके सामने आप थ्रेट मत बनो, तो वो आपसे दोस्ती करेगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं। सर दूसरा मैं एक अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हुई थी, थोड़ा मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। मेरे को कहीं पर सुना था कि लाइफ जितनी सेंसिटिव हो वो इतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा डिटेल में सोचा कि क्या कहना चाहा होगा उस ऑथर ने, जो जिसने ये लाइन लिखी कि लाइफ जितनी सेंसिटिव है वो उतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। घोड़े के बच्चे, डॉग्स के,
आप लेके चलो कि वो पैदा होते हैं और साथ में ही चलना शुरू कर देते हैं, तो हार्डली 2 दिन में 3 दिन में ज़ेब्रा के बच्चे साथ में चलना शुरू कर देते हैं। एक इंसान का बच्चा ही ऐसा है जो जिसको अपने पैरों पे खड़े होते हुए कम से कम 4 साल लग जाते हैं और बोलते हुए उसको 1-2 साल लग जाते हैं, या शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि 2 साल में वो खड़ा, 3 साल में वो खड़ा हो जाता है, 4 साल में वो 5 साल में बोलना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन का बेबी जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है rather as compared to other animals also. I personally think it's evolution. अगर एक घोड़ा है in the wild या कोई भी जानवर है जैसे इसमें 2 चीज़ मैं आपको highlight करूँगा, जैसे कि उनको केयर की ज़रूरत नहीं है। बेबी हुआ, उन्होंने झुंड पे थोड़ा टाइम चलाया और दूसरे दिन बच्चा साथ ही अपने ग्रुप के साथ चल पड़ा। हमारे बेबी को, ह्यूमन की बेबी को अगर प्रॉपर केयर ना मिले, प्रॉपर चीज़ें ना मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम उसको जानते हैं कि अब एनिमल का बच्चा फिर सर्वाइव कर जाएगा, अगर उसको ग्रुप भी छोड़ जाता है तो फिर भी कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं। यहाँ पर एक सेंसिटिव लाइफ की बात करें कि ह्यूमन बेबी जो है वो सेंसिटिव है। सॉरी, अब आप इसके बारे में। मेरा सोचना उसके बारे में, I've never thought about it, but since you mention it, ऐसा है कि जो हाथी का बच्चा है या डेयर का बच्चा है, वो जिस दिन पैदा होगा, इट्स एवोल्यूशन, उसको जल्दी सीखना है, नहीं तो वो बचेगा नहीं, राइट? सो दैट्स एवोल्यूशन, बिकॉज मैन is a gatherer and a hunter, is not a hunter, is a gatherer, but we stay in societies. तो जो भी एनिमल सोसाइटीज में रहते हैं उनको ज़्यादा टाइम लगे तो पूरी सोसाइटी उनको केयर करती है। आप एक हाथी के बच्चे को देख लीजिए, हाथी का बच्चा पैदा होता है, आमतौर पे एक झुंड में एक टाइम पे एक ही माँ बच्चा पैदा करती है। फिर जब बाकी सारे हाथी जाते हैं तो सारे उसको प्रोटेक्ट करके वो माँ के नीचे चलता है और पूरा झुंड उसके साथ साथ चलता है, सो दैट काफ इज वेल प्रोटेक्टेड, राइट? लेकिन जो डेयर का बच्चा है जो पैदा हुआ है, they live by themselves usually, they don't stay in packs. Wolves again, they live in packs. तो जो भी पैक्स में रहते हैं उनको थोड़ा टाइम लगे डेवलप करने के लिए, that's understandable. Humans, we're supposed to live in packs. But these animals in the jungle, most of them, hyenas and all, they have to get on their feet the day they're born. Birds, when they're born, they need to fly, otherwise they'll, so I think it's just evolution. That's the way I look at it. सब एनिमल्स का डिजीज होता है, डिफरेंट होता है ह्यूमन डिजीज से। इनका साथ में रहने से क्या ऐसा होता है कि इनके डिजीज भी आपस में ट्रांसफर करते हैं? Absolutely. तो सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि जो एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं वहाँ पे उनको कोई डिजीज नहीं होता। So there isn't any pandemic or epidemic that happens in the jungle. जो भी जानवरों की डिजीज हैं वो अर्बन सोसाइटीज में ही होती हैं। पार्वो डिस्टेंपर लगा लो डॉग्स के लिए, जॉन्डिस लगा लो, फुट माउथ डिजीज लगा लो, मैड काउ डिजीज लगा लो। You are against these products? The products? I'm not sure what you mean by products. I'm against. So in my mind, these diseases only happen when you confine a large amount of animals in a small area. So हॉस्पिटल्स में जैसे भी आप देखोगे, एक हॉस्पिटल है जहाँ पे जर्म्स हैं तो एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। गौशाला है, जैसे लंपी स्किन डिजीज हुआ पिछले साल, तो एक गौशाला में एक को हो गया, एक गौशाला की कैपेसिटी 400-500 होती है, तो कम से कम 1500-2000 गाय होती हैं वहाँ पे, पैक होती हैं एक दूसरे के साथ। जब भी आप एनिमल्स को हाई डेंसिटी में कहीं पे रखोगे तो वो डिजीज स्प्रेड होने की चांस ज़्यादा है। मैड काउ भी वैसे स्प्रेड होती है, जो चिकन को बम्बल फुट होता है वो भी ऐसे स्प्रेड होता है। सो जो भी डिजीज एनिमल्स को होंगी वो, उसे हम फैक्ट्री फार्मिंग कहते हैं, कि हम फार्म एनिमल्स को फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की तरह रखते हैं और उनको फोर्सेबली मल्टीप्लाई कराते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए कॉस्ट कम करते हैं। और कॉस्ट कम करने का तरीका ये होता है कि उनको एक्सप्लॉइट करो। एक कमरे में अगर 10 रह सकते हैं उसकी जगह 50 करो। तो सर ये स्टैंडर्ड्स क्या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये ह्यूमन वैल्यूज डिसाइड करेंगी, या कुछ एनजीओज डिसाइड करेंगे, कि वॉलंटियर्स डिसाइड करेंगे? कौन इंटरफेयर करेगा? कि बाहर तो ऐसा नहीं है, बाहर तो बाहर भी ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली इट्स एवरीवेयर। जो चिकन का हाल है वो सारी दुनिया में, वो सिर्फ हमारे को दिखता नहीं है क्योंकि वो रोज रिपोर्ट नहीं होता है, लेकिन द आंसर इज गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है कानून के हिसाब से, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो जो एनिमल क्रूल्टी होती है उसके एनिमल क्रूल्टी लॉज अलग से बनते हैं,
जो जो फैक्ट्री फार्मिंग होती है उसके अंदर जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए है, एफएसएसएआई है, वो रूल्स बनाती है कि आप कैसे जानवरों को आप रखोगे और कैसे कौन सी इंजेक्शन आप दे सकते हो, कौन सा नहीं दे सकते। ओके। प्रॉब्लम है कि उसको इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल है। इवन इन अ कंट्री लाइक द यूएस 10-15 शहरों के ऊपर एक एफएसएसएआई, एक एफडीए इंस्पेक्टर आता है। तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। जानवर इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कराते हैं और इतने ज़्यादा जानवर, जैसे इंडिया में आप ये सोचो 65 करोड़ फार्म एनिमल्स हैं, 130 करोड़ हम टोटल हैं, आधा हर 2 आदमी के ऊपर एक गाय आती है इंडिया में। तो इतने फार्म एनिमल्स को एफएसएसएआई इंस्पेक्टर्स तो डेफिनेटली उनको कवर नहीं कर सकते। तो आप जो सोच रहे हैं कि आजकल एक काऊ के कान में वो लगा देते हैं ट्रैकर, है ना? तो वो आप वैलिड कहते हैं कि हाँ ये वैलिड चीज़ होनी चाहिए? अगर मेरे को आज भी वेरी फैक्ट मैंने जब देखा एक छोटे से इसके कान में ट्रैकर लगा हुआ, तो मेरे को एक अलग सी एकदम से फील आया और मैंने सेकंड टाइम सोचा कि यार अगर कोई मेरे कान में ऐसे ट्रैकर लगाए और बोले कि जा घूम, then how would I feel that? So let me ask you a different question. How would you feel if you got to spend only one day with your mother in your life? How would you feel if you had a brother and they killed him on day one? Right. So how would you feel when you never get to go out in the sun and play with others? So usually your tracking is actually not bad, and I'll tell you why. Because जो फार्मर्स हैं जो काउस को रखते हैं वो क्या करते हैं, एक 30 साल 25-30 साल एक उम्र होती है काउ की, लेकिन पहले 10-12 साल तक वो दूध देती है, फिर मेस्टाइटिस हो जाता है, तो वो क्या करते हैं जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो अबैंडन कर देते हैं, अगर वो एथिकल है। अगर एथिकल नहीं है तो वो उसको बुचड़ खाने भेज देते हैं, क्योंकि बुचड़ खाने में भी उनको 20,000 के आसपास पर काउ मिल जाता है। ठीक है। अगर वो एथिकल हैं तो उनको सड़क पे छोड़ देते हैं, और कई ऐसे समुदाय हैं जो सिर्फ सड़क से काउस को उठाते हैं, लेके बुचड़ खाने ही जाते हैं उसको। तो जो गाय आप सड़क पे देख रहे हैं, जो सड़क पे जो अबैंडन काउस हैं, अगर वो ट्रैकर लगा होता है तो टेक्निकली वो बता सकते हैं कि किस फार्मर ने अबैंडन किया। तो एमसी का रूल है कि अगर किसी ने अपनी काउ को अबैंडन किया तो 5,000 रुपए का फाइन है। लेकिन जिस बंदे ने अबैंडन कर दिया वो तो कभी वापस लेने जाएगा नहीं। अब कैसे ट्रैक करोगे कि इसकी काउ है? वो सिर्फ ट्रैकर से करोगे, तो अबैंडन करने से पहले वो निकाल देते हैं। सर एक रेबिस के ऊपर मैं बात करूँ, रेबिस का हमें रेबिस का ऐसे ही कि डॉग जो है हमें बाइट करता है तो रेबिस होता है ना, ये एक। लेकिन मुझे किसी ने ये भी कहा कि डॉग के वजह से रेबिस नहीं होता है, रेबिस मॉन्की की वजह से होता है। ऐसा कुछ है कंसेप्ट कि मॉन्की ने अगर डॉग को काटा हो तो और डॉग ने आगे काट ले तो ऐसा? सो रेबीज एक वायरस है, वायरस से होता है, वो किसी भी वार्म ब्लडेड एनिमल में हो सकता है, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हम सब आते हैं, मैं और आप भी आते हैं। किसी भी जानवर को, घोड़े को हो सकता है, काऊ को हो सकता है, मंकी को हो सकता है। सिर्फ जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे चिपकली हो या सांप हो, उनको नहीं होता। इनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं? हाँ, कोल्ड ब्लडेड, इनका ब्लड कोल्ड होता है। ओके। So, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको उनके सलाइवा में ये मल्टीप्लाई करता है, दिमाग में जाके लगता है, सलाइवा से वो मल्टीप्लाई करता है, और उनका सलाइवा जिसको भी टच करे, तो अगर एक मंकी ने डॉग को काटा और मंकी को पहले से रेबीज था तब डॉग को होगा। अच्छा। अगर वही डॉग ने मेरे को काटा, उसको रेबीज था। ओरिजिन कहाँ पे, मतलब वो हम भी हमारे अंदर भी हो सकता है? ओरिजिन कैसे होगा? हमारे अंदर आता है, जैसे कोविड है, सारी दुनिया में कोविड है इस समय, लेकिन मुझे तभी होगा जब मेरे अंदर जाएगा कोविड। वैसे ही जो रेबीज है वो जानवरों के अंदर ऑलरेडी है, कई जानवरों में है। अगर कोई जानवर मुझे काटेगा उसके सलाइवा के थ्रू मेरे अंदर जाएगा। लेकिन सबसे कॉमनली डॉग्स में इसलिए होता है क्योंकि डॉग्स हमारे को सबसे कॉमन एनिमल दिखते हैं जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। लेकिन जो हॉर्सेज हैं और जो काउज हैं, इनको भी रेबीज का टीका लगाना पड़ता है बचाने के लिए। सिर्फ ये है कि उनके दांत फ्लैट होते हैं तो वो बहुत हमारे को काटते नहीं हैं। हॉर्सेस तो फिर भी काट लेते हैं, गाय बहुत रेयरली काटती है हमारे को। तो डॉग से सबसे कॉमनली होता है, मंकी से भी होता है, चूहों से भी होता है। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल्स। सबसे कॉमन एनिमल है बैट, जिससे होता है। लेकिन जो इंडिया में बैट्स हैं वो सिर्फ फ्रूट बैट्स हैं, वो वैम्पायर बैट्स नहीं होते इंडिया में। तो इंडिया में बैट से नहीं होता है, स्कंक से होता है। स्कंक्स भी इंडिया में पाए नहीं जाते हैं। तो बीवर से होता है। सम एनिमल्स लकली इंडिया में पाए नहीं जाते हैं। डॉग्स आर द मोस्ट कॉमन वंस इन इंडिया। लेकिन वो वायरस डॉग के अंदर होना चाहिए, तभी वो मेरे अंदर आएगा। सर आपको क्या लग रहा है पेट्स क्यों रिक्वायर्ड है? हमें
पेट्स क्यों रखने चाहिए? पेट्स क्यों रखने चाहिए? क्या हमें रखने भी चाहिए कि हमें स्ट्रीट डॉग्स को ही क्या वो फील मेरे हिसाब से एक जानवर के लिए या हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी फ्रीडम। उससे ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है, भले वो ज़ू का जानवर हो या वो किसी के घर में पालतू कुत्ता हो या जो सड़क पे घूम रहा हो। तो अगर हम एक डॉग से उसकी फ्रीडम छीन रहे हैं, इसका मतलब उसको हम अपने घर में रख रहे हैं। हाँ, वो हमारे घर के अंदर घूम सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से सड़कों पे नहीं जा सकता, मार्केट नहीं जा सकता। तो इन सेंस हम उसकी फ्रीडम ले रहे हैं, तो उसके एक्सचेंज में हमारे को उसको इतना कुछ देना चाहिए ताकि वो उसको कॉम्पनसेट कर सके। और वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा उनको जो ज़रूरत होती है वो होती है प्रोटेक्शन फ्रॉम फूड, फ्रॉम थर्स्ट, हंगर, पेन। बीमारी से उनको बचा के रखें। दैट्स द मिनिमम वी कैन डू फॉर आवर पेट्स। ट्राई टू गिव देम नेचुरल नॉर्मल बिहेवियर। उनको जितना भी बाहर लेके जा सकें, उनको सैर कराने के लिए या दूसरे डॉग से मिलने के लिए। जानवर को हमेशा जानवर के साथ पड़ा होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो तो आप अपने जानवर को, अगर आपके पड़ोसी के पास डॉग है, उसके साथ खेलने दो। जो सड़क पे जो पेट्स हैं, जो सड़क पे डॉग्स हैं, स्ट्री डॉग्स, उसके साथ खेलने दो। जानवर को जानवर की तरह बड़ा होना चाहिए। अगर आजकल तो डॉग सिर्फ टीवी भी देख रहे हैं और वो पूरा इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं। मैंने देखा है कि वो बैठे होते हैं और देख। लेकिन कितना बोरिंग है। आप ये सोचिए कि आपका जो पेट है जो घर पे रहता है, वो मैक्सिमम आप उससे दिन में आधा घंटा, अगर आप समरी भी करें तो आधा से 1 घंटा से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो बाकी टाइम वो बहुत कुछ तो करते हैं नहीं, सोते रहते हैं या आपकी वेट करते रहते हैं। तो बहुत अच्छी लाइफ नहीं होती है। सिर्फ ये है कि उनको खाना मिल रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ, पेन और इंजरी से आप प्रोटेक्शन है, लेकिन उसको आप कॉम्पनसेट करो अफेक्शन से। लेकिन बहुत ऐसे क्रूरली, मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए काम करता हूँ, द डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर। तो बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे एनिमल को केयर नहीं मिलती। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम अभी आ रहे हैं 12 सेक्टर से, जहाँ पे एग्जैक्टली यही था। हस्की को बांध के रखते हैं, कोई उसको केयर नहीं देते। तो जो अफेक्शन है, अफेक्शन भी एक जानवर को देना चाहिए, उतना ही ज़रूरी है उसके मेंटल वेलबींग के लिए। और दूसरे जानवरों से भी खेलने देना चाहिए। सो लेट हिम बी एन एनिमल एंड शो हिम लव एंड अफेक्शन। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर कभी कुछ रिक्वायरमेंट होता ना, कुछ मुझे याद है कि जब मैंने कोई स्ट्रीट पे कोई डॉग देखा, मेरे को लगा कि अब इसको रिक्वायरमेंट है कुछ किसी हेल्प का और मैं नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमने कभी रखा ही नहीं डॉग, तो मैं कैसे, लेकिन स्टिल आई फील कि यार इसको हेल्प कैसे करें। देन आई यूज्ड टू कॉल डॉग एनजीओज की भैया ये कैसा एनिमल है, एंड वॉलंटियर्स एक विकास लूथरा थे। तो मैंने एक बार उनको कॉल किया था, वो आए थे, अभी वो नहीं रहे। बट मतलब वो क्या पैशन है, वो क्या सेटिस्फेक्शन है कि उनको एक डॉग को हैप्पी देखकर वो खुश होकर गया। उसको 1% टेंशन नहीं हुआ कि मैं 0% मोहाली आया हूँ और डॉग को कुछ नहीं किया उसने, बस थोड़ा सा उसको पता लगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसने साथ ही में जो भी उसका ट्रीटमेंट। सो वो आपको विकास से पूछना पड़ेगा। ही इज अ वेरी नाइस गाय, मे ही रेस्ट इन पीस। लेकिन दिल होता है लोगों का जब वो दूसरे के लिए सेवा करते हैं। सो दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू। और भी जो एनजीओज हैं हमारे शहर में, सब यही काम है उनका। अगर कोई इंजर्ड एनिमल है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, दवाई देना, ये इंश्योर करना कि उनको खाना ठीक मिल रहा है। क्योंकि जब डॉग्स जो स्ट्रीट पे रहते हैं उनको बाकी सब टाइप ऑफ फूड, जो फूड कैटेगरीज होती हैं, सब मिल जाता है उनको, लेकिन मिनरल्स और विटामिन नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारे जैसे वो फ्रूट्स नहीं खाते हैं। सर क्या इतना डिटेल नॉलेज होना जरूरी है? इतना डिटेल नॉलेज किसके लिए? तो जो एनजीओज हैं उनको तो डेफिनेटली होना चाहिए। वैक्सीनेशन उनको देनी चाहिए उनको बीमारी से बचाने के लिए। स्टेरिलाइजेशन करानी चाहिए ताकि वो मल्टीप्लाई ना करें। वो सब एनजीओज करते हैं, तो सारे एनजीओज वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप और मैं हैं ये तो ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब कि क्यों किसी को कोई रिक्वायरमेंट महसूस हुआ कि अब डॉग्स के लिए एनजीओ बनना चाहिए या हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए? कि क्या कुछ बहुत बुरी हालत हो गई थी या आने वाले टाइम में बहुत बुरी हालत हो रही है? So, ऐसा है कि there are some people who don't like dogs. Like भी नहीं बोलूँगा, there is a fear of rabies and fear of animals, जो एक disproportionate fear है। लेकिन वो fear है, वो हमारी मूवीज से आया है या हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर fear डाल दिया है। कहीं से भी fear आया वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो fear है। माँ अपने बच्चे के लिए डरती है, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि आप डरो मत, वो उसका नेचर है अपने बच्चे के लिए डरना। लेकिन वहाँ से उसको जब हम एग्जैजरेट करते हैं फेयर को, तो उनको लगता है कि इस डॉग को उठा के कहीं फेंक दो
या इनको होना ही नहीं चाहिए। पत्थर मार दो, या तो सब यही बोलते हैं हमारे को कि डॉग को उठा के कहीं ले जाओ। ये मैजिकल जादुई जगह कहीं कहाँ पे है मुझे नहीं पता, बिकॉज सारे देश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इंसान नहीं है। पॉपुलेशन की तो वैसे ही हमारे को बड़ी प्रॉब्लम है, और डॉग को हम लीस्ट लाइकली होता है बाइट करने का जहाँ पे वो रहता है। हम उसको उठा के कहीं और छोड़ दें तो वहाँ पे दूसरे डॉग से लड़ेगा। एक दूसरे से जब लड़ते हैं तब उनको रेबीज होने का भी चांस होता है। तो ये जो भारत सरकार ने कानून बनाया है कि आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, एक रेबीज कंट्रोल क्या मेजर बना सर ये? ये 2001 का कानून है, 2001 एबीसी गाइडलाइंस है। तो ये इसलिए है कि रेबीज स्प्रेड ना हो। सो इट्स अ रेबीज कंट्रोल मेजर जो इंसानों के लिए है, लेकिन इंसानों को समझ में नहीं आता। उनको सिर्फ ये लगता है कि आज इस डॉग को यहाँ से उठा के कहीं ले जाओ। तो सर मुझे कुछ लॉज के बारे में बताओ, कुछ ऐसा लॉ जो एक नॉर्मल हमें पता होना चाहिए कि ये एनिमल राइट्स है इसके अंदर। तो एनिमल राइट्स सबसे ज़रूरी है कि आप किसी भी जानवर को मार नहीं सकते हैं। कोई भी किसी भी जानवर को, नॉट जस्ट डॉग्स, ड्राइव करना, मारना, जान से मार डालना, या उसको अगर आपका पेट है लगातार कहीं पे बांध के रखना उसको। आपने ड्राइव करना बोला? ड्राइव होता है जैसे हम किसी जो हॉर्सेस को ड्राइव करते हैं ना, जो वो allowed। एक्सेसिव ड्राइविंग बोलते हैं उसको, ओके। कि उनका एक टाइम होता है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा उनको ड्राइव नहीं कर सकते। तो यू कांट ड्राइव देम टू एग्जॉशन, सो देयर आर लॉज। फिर आप एक पर्टिकुलर वेट होता है, उससे ज़्यादा वेट कैरी नहीं करवा सकते हॉर्सेस से। अगर 2 पहिए की गाड़ी है तो 750 किलो, जिसके अंदर इंसान का और रेड़े का वेट इंक्लूड होता है। फिर आप गर्मियों में 12 से 3 बजे तक किसी भी जानवर से कोई काम नहीं करा सकते जब 37 डिग्री टेम्परेचर हो बाहर। तो देयर आर लॉज दैट प्रोटेक्ट एनिमल्स। आप किसी भी जानवर की बलि नहीं दे सकते हो, भले वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो। तो उसको आप, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक स्लॉटर हाउस है तो स्लॉटर हाउस में मार के उसको मीट लेके घर आ सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन अपने घर पे आके उसको काट दिया, वो अलाउड नहीं है। जो वाइल्ड लाइफ है हमारी वो तो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है। आप मंकीज को पेट्स की तरह नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने ट्रीज में घूमना उनकी नेचुरल नॉर्मल बिहेवियर है। आप सांप को नहीं पाल सकते हो, आप कछुए को नहीं पाल सकते हो, नहीं, दैट्स अगेंस्ट द लॉ। सांप वाइल्ड लाइफ है, और जो भी वाइल्ड लाइफ है वो इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर सांप को कोई मारे तो 5 साल की सजा है उसकी। इट्स मच मोर देन एन एनिमल। सो वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड, हंटिंग इज अगेंस्ट द लॉ। किसी भी एनिमल को आप हंट नहीं कर सकते हो जब तक उसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है स्टेट ने। और सर जो अपना लास्ट क्वेश्चन, सर जो ये अब ऐसा भी देखा है हमने कि पड़ोसियों की लड़ाई हो जाती है। कोई टेक केयर कर रहा है, फूड डाल रहा है डॉग्स को स्ट्रीट में, और कहीं पर साथ वाला आके कह रहा है कि तुम इसको खाना क्यों दे रहे हो, ये यहाँ पर हमें डर लगता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, दोनों अपनी जगह पर ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चे के लिए वो कह रहे हैं, और उसको डॉग का पेट नजर आ रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को इसको देना चाहिए। इस केस में आप कैसे चीज़ों का हैंडल करते हैं? सो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो जानवर की वजह से जो ह्यूमंस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे ज़रूरी है कि जब तक हम अपने पड़ोसी के साथ भाईचारे से रहेंगे, जानवर भी खुश रहेगा, पड़ोसी भी खुश रहेगा। लेकिन वो भाईचारा निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पेशेंस का थोड़ी कमी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एनिमल हेटर्स बोलते हैं या एनिमल लवर्स कुछ बोलते हैं, लेकिन जब भी आर्ग्यूमेंट होता है तो हमारी आदत है हिंदुस्तान में सड़क पे खड़े होकर आगे करने की। तो जब हम सड़क पे खड़े होकर ऊंची ऊंची बोलते हैं तो 4 लोगों को सुनाने की, और लोग भी आए और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर कौन सही है कौन गलत है, फिर गुटबाजी हो जाती है। तो अगर हमारे को किसी से कोई भी प्रॉब्लम है, भले आमतौर पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप खाना देते हो तो वो वहाँ पे पॉटी करते हैं, ठीक है। क्योंकि जानवर की एक बेसिक नेचर होता है कि जहाँ पे वो खाता है या सोता है वहाँ पे वो पॉटी नहीं करता है, थोड़ी दूर जाके करता है। तो अगर मैं खाना देता हूँ तो मेरे घर के आगे वो बैठता है, तो जब उसने पॉटी करनी होगी तो किसी और के घर के सामने जाके करेगा। तो जिसको जानवर पसंद नहीं है उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे घर के सामने पॉटी है। तो मेरे हिसाब से जो फीड करता है उसको पॉटी उठानी चाहिए। सारी दुनिया में इंटरनेशनली जो भी अपने डॉग को कहीं लेके जाता है उसकी पोप उठाते हैं।
इंडिया में हम नहीं करते हैं। हमने नहीं हमारा मैंने देखा था one person was मतलब ड्रास्टिक लिस्ट लाइक और कैरिंग हिज बॉडी ना, अब वो आगे जाए तो वो नीचे नहीं हमारे पे, वो थोड़ा सा फिर आगे चले फिर वो पीछे, लाइक यार ये तो बड़ा चैलेंज हो गया इस बंदे so, उसको लिफाफा रखना नहीं पड़ता, यू गॉट टू लेट हिम पूप एंड लिफाफे से आप उसको उठाओ, लिफाफे को अपने हाथ में नहीं उल्टा कर दो। वो शायद दूसरे कर रहे थे कि वो जैसे ही बैठने लगता था लिफाफा का वो आगे निकल जाता वो नहीं करता, वो उसको उसको ये बड़ा चैलेंज हो गया that was the wrong technique, but essentially that's one reason. दूसरी बात कि अगर उनके बच्चे छोटे हैं और उनके आपके घर के सामने बैठ रहा है, डेफिनेटली मारने से वो ज़्यादा अग्रेसिव बनेगा। अगर उसको चोट लग गई तो दर्द में रहेगा, तो फिर ज़्यादा लोगों को काट सकता है। या अगर आपके पास डंडा है तो हो सकता है आपको ना काटे, लेकिन वो जो नौकर जो जाते हैं एक दूसरे के घर में जो बिना डंडे के जाते हैं उनको ज़्यादा, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक को डंडे के साथ चलना चाहिए, ठीक है? फिर तो इट्स लाइक जो अमेरिका में कहते हैं एवरीबॉडी शुड हैव अ गन टू सेव लाइव्स, दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड, बट एसेंशियली इन अ सिचुएशन लाइक दिस नेबर्स नीड टू बी नेबरली टू ट्राई एंड सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स। छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉर्ट हो जाती हैं थोड़े से कंसिडरेशन के साथ। वैसे मेरे एक इंसिडेंट याद आया कि मेरे को कैसे एक डॉग ने दूसरे डॉग से बचाया था। वहाँ पे एक रेगुलर बैठते थे, तो हम वैसे ही बैठे हुए थे, एकदम से ना स्मेल सी आनी शुरू हुई कहते हैं, और बिल्कुल अंधेरा था, और देख बस मेरे को यहाँ मेरे पैर के पास एक डॉग नजर आया, एक वहाँ से दूसरा डॉग नजर आया, मेरे को काटने ही वाला था, पता नहीं वो कहाँ से था, उसका नाम रखा था मैंने थंडर, तो वो उसने उसकी टक्कर मारी, और मैंने कहा, और मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये मेरे को काट लेता, और उसमें से इतना स्मेल आ रहा था ना, वो जो डॉग भागा रहा था, तो मेरे को आज भी याद आता है, मैंने कहा कि उस टाइम उसने बचा ली थी, तो पता नहीं कितने टीके लग रहे थे। सर कुछ मैसेज आपने हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं, कुछ आपको लग रहा है कि ये चीज़ पता होनी चाहिए सबको? मुश्किल है हम pontificating a message। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो जानवर हैं बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं, हमारी जैसी उनकी फीलिंग्स होती हैं, बोल नहीं सकते हैं तो हम उनकी आवाज़ हैं, हम उनकी आवाज़ दूसरों तक कैसे पहुँचाएं, भले वो सरकार है, पुलिस है, या जिनको भी वो अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे को दर्द हो रहा है, या हम यहाँ पे खुश नहीं हैं, या हमारे ऊपर एक्स्ट्रा वेट डाला जा रहा है, तो हम हर सिचुएशन में उनकी आवाज़ हैं। वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना चाहिए और हमेशा उनकी आवाज़ होना चाहिए।